Hi, Talia. Hi, Meru. How are you? I'm doing fantastic. How are you? I am good too. Happy Love Day. Happy Love Day to you as well. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's to everybody watching. Guys, this is a very special episode because I know you can already see on the screen that we have another two people present today on this episode. This episode is dedicated to love and partnership. It is for Valentine's, and clearly it's for Valentine's because we're wearing red today. Talia, what do you want to say? I just want to say I'm so excited. We have really fun people. We have Arz Kiya Hai podcast, Pehle Mehman, the first guest ever. So it's going to be a super fun episode. And as Mehru mentioned, we are going to talk about partnership. And क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं और हम लोग अच्छी औरत बनने की तैयारी में लगे हुए हैं, we are all keeping it very halal today. So we do have a couple today. हम शादीशुदा जोड़ा को लेकर आए हैं. Right? ठीक है ना, हम इतने अच्छे बच्चे हैं. So, without any further ado, should we introduce our guests? Are you guys ready? Guest, आप लोग तैयार हैं? आ जाएं आप लोग screen पे. Yay! Hello. Welcome to the podcast. Guys, introduce yourself. Me first. Okay. मैं अली. मैं 30 साल का. मैंने मास्टर्स किया हुआ है और शादीशुदा हूँ. तकरीबन 2 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गए. माशाल्लाह मुबारक हो बहुत. माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ. This sounds like your Arista.com profile. Exactly. बिल्कुल. मैं सब कुछ बताना चाह रहा हूँ. So this is me. This is Ali. Welcome, so, बच्चों, Ali. if you want, so any of the kids out there want to get married, देखो अगर आपने अपने आप को introduce कराना है, इस तरह introduce कराते हैं. This is exactly how you do it. ठीक है? To the point. Tuck. जी. And आप बताइए, आप अपनी introduction करवाइए. मेरा नाम शफक है and I'm 27, I guess. मुझे आपने बोला था एज बताई थी नहीं बताई थी? लड़कियां नहीं बताती. अच्छा. Oh, गलती हो गई. And मैंने भी मास्टर्स किया हुआ है. अगर आपने बताया मैं बताऊंगी. you're like जिनकी इससे शादी हुई है मैं वो हूँ जिनकी इससे शादी हुई है. अच्छा. Oh, good. Nice to meet you, Shafaq. Welcome to the podcast. So yeah, guys, Ali and Shafaq are from Toronto, Ontario, and they live and work there. They're married. Shafaq is a policy analyst. She works with the government, and Ali is a videographer and a content creator. So go follow them on Instagram. I think Ali's Instagram handle is I was in a podcast. Ali's Instagram handle is Kadeem Bola, so it's QADEEMBOLA. And then Shafaq, do you have a public Instagram? Yeah. Okay, so it's Shafaq Noorani. I will link it all down below in the description as well. So please go follow them. Yeah, this is going to be a fun episode. So आज तालिया हम इनसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं, हम इनको तंग करने वाले हैं. थोड़ी बहुत कपल्स थेरेपी होने वाली है इधर. सच निकलने वाला है कि शादी क्या होती है, कैसे गुजर रही है, और yeah, we have some interesting questions. I think सबसे पहले आप दोनों की थेरेपी के लिए हम लोग बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है क्योंकि हम दोनों chronically single हैं. कोई खास good experiences नहीं है. जितने अच्छे मशवरे सिंगल्स देते हैं ना रिलेशनशिप वालों को, that's उससे अच्छा कोई नहीं देता. ये आपने दिल की बात की है. Plus we can for therapy so it's okay. हम लोग दूर से बैठ के ना तूफान देखते हैं, इसलिए शायद हमें अच्छा ना. बिल्कुल. And then you know what, like I think why we wanted to really do this is कि एक तो ये कि a lot of people, especially Desi people, I think they enter marriage either completely unprepared or even understanding कि what is marriage, या लोग इतने डर जाते हैं और traumatized हो जाते हैं from the examples of marriage that we have around us कि they're like नहीं भैया तुम रखो, हमने करना ही नहीं है. और वो they're like commitment phobic या जो भी आप phobia कहना चाहते हो, शादी phobic, it's there. So I thought like let's have a couple that I always enjoy seeing on social media, and also I know how amazing and cute you two are together. So I think it was just okay, let's make shadi and the conversation of love normal, and like let's see how it does it play out for two regular people. ठीक है ना? और obviously के मुझे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का शो करने का बड़ा शौक है, तो इसलिए क्या कहते हैं representing. ठीक है ना? बिल्कुल. So पहला सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग कैसे मिले थे?
Oh, okay. मैं 7 साल की थी और आप 9-10 साल की हो गए. That's when we first met. मेरा जो first the memory I have is that मैं तो shoelace tie करने की कोशिश करी थी, and then some boy came, tied it up for me, looked up, and I saw him. Ali doesn't remember that. He thinks that was somebody else, but that was my first memory. Yeah. And then दूसरी बात that you remember. I remember उसी एज क्राइटेरिया में थी. मैं अपने 2 दोस्तों के साथ खेल रहा था. तो ये स्कूल में बैठी हुई थी और ये आके बोलती कि मुझे तुम लोगों के साथ खेलना है. तो वो दोनों दोस्त मेरे पास आए, बोला कि यार वो पूछ रही है कि इसको खिलाना है कि नहीं खिलाना है. तो हम उस वक्त लड़की वो होता है ना बचपन, वो टीचर्स हम उन स्टूडेंट्स में थे वो जरा सा कुछ मस्ती करो तो टीचर लड़कियों के बीच में बिठा देती, तो हम इसलिए मस्ती नहीं करते थे. तो उस वक्त फिर 2 दोस्तों ने बोला कि भाई वो कह रही के साथ खेलना है. मैंने कहा लड़की है, तो मैं कहा चलो आज खिला ले, बेचारी अकेली बैठी हुई. तो बस वो फिर हमारे ग्रुप में एंटर हो गई. फिर हमारा 4 का ग्रुप हो गया, फिर 4 से 3 का हो गया, फिर 3 से 2 का हो गया. शफक की ये प्लानिंग थी. ही साजिश थी. तो वो कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में लड़का लड़की जब आते हैं तो कोई 1 या 2 दोस्त चले जाते हैं. तो जी मैंने बहुत सुना अपने अब्बू से खुद कि मेरी सारी दोस्तियां खत्म हो गई तुम्हारी माँ की वजह से. इन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है, कैद रखा हुआ है मैं, तुम्हारी माँ ने मुझे. मैंने बहुत सुना है. अच्छा आप भी फील करते हैं आपको कैद रखा के? थोड़े बस ऐसे मिले हम. उस बेचारे का सांस नहीं निकल रहा. आई नो. कोशिश करके सांस ले रहा. नहीं थैंक यू फॉर टेलिंग अस. अच्छा दैट्स वेरी क्यूट. अच्छा पहले से आप एक दूसरे को मतलब कि जानते थे, फैमिली फ्रेंड्स या कजिन्स वगैरह? अच्छा फैमिली फ्रेंड्स. स्कूल फ्रेंड्स. नाइस. हाँ हम हमारे रिलीजियस स्कूल भी था, हम उसमें भी साथ थे. तो फिर Nice. Very cute. That's so sweet. Yeah, it's a proper like childhood love story. Yeah, actually. It's a long very long love story. Long love story. Clearly. Wow. So when did you know that he was the one, and when did you know that she was the one? You want to take that first or me? I didn't know for a while, to be honest. Like हम लोग long distance relationship में काफी साल तक रहे, almost 5-6 साल before we got married, right? 7 years before we got married. Wow. And I think पहले 2 साल तो मुझे होश भी नहीं था कि like कुछ करना भी है आगे, like where is this going, all those questions, because I was that nerd who was focused on पढ़ाई करनी है, बाद में देखी जाएगी बाकी चीजें. So I think gradually I realized कि हाँ नहीं, this is the person I want to spend my life, potentially spend my life with. Like, what was the question? Exactly. When did you know that she was the one for you? ना ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब मैंने कोई रियलाइज किया और ऑल दैट. सीन ये हुआ था कि बचपन में मैं बोलने वाला था, बचपन में मैं छोटा था. जब ये मुझे पसंद आई थी बचपन में, जिसके साथ जब मुझे ये अच्छी लगने लगी थी, तब उस वक्त आई थिंक 10-12 साल का होऊंगा मैं. तो मैंने अब्बू को बोला था कि मैंने इससे शादी करनी. तो मेरे बाप ने मुझे बोला कि तू पहले पढ़ ले, अपने पाँव पे खड़ा हो जा, फिर उसके साथ रिश्ता मांग ले, वरना उसका बाप तुझे उसका हाथ नहीं देगा. मैं कहा ठीक. लड़की के लिए पढ़ाई की. चैलेंज एक्सेप्टेड. ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, मास्टर्स तक पढ़ा लिया. क्या बात है. शफक, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने बोला कि you guys were in a long distance relationship till 7 years और फिर उसके बाद जाके. So 7 years for मेरे माइंड में for a देसी couple is a long time. बहुत सारा I think औरतों पे प्रेशर होता है, बच्चों पे प्रेशर होता है. 2 साल मंगनी चलाओ और एक दूसरे को जानो और फिर शादी करो और निकलो, ठीक है. So like what did you have any challenges in those 7 years? क्या आपको किसी को कन्विंस करना पड़ा कि नहीं I will wait 7 years? या like इसलिए वेट किया because मैं कन्विंसिंग में लगी हुई थी. Convincing to get married or convincing to wait कि नहीं मैंने अभी पढ़ाई करनी है? नहीं, convincing to have everyone accept कि this could be a potential thing. Actually हम different cultures से belong करते हैं, so it was for our families to see कि यार ऐसा possible है. They were both worried, like both sides were worried कि ऐसा possible है या नहीं. But I guess coming from our sort of mentality कि हमने यार नहीं, अगर you know we've said we like each other and we're gonna go ahead with it, तो ये हमारी like it's our life choice and we made the choice, we'll see it through. And if we don't, if it doesn't work, it doesn't work. That's our you know our mistake, our life. your guys' शादी तो आप लोगों की choice है इसमें. like I don't think कोई third party involved होने की जरूरत है. नहीं, बिल्कुल सही कहा. अच्छा तो फिर
जब हो गई शादी और like शादी से पहले like you said कि दोनों different cultures से और family, so whose family is crazier? And by not meaning कि वो शादी के against थी, but like whose family is like harder to convince? harder to convince? Mashallah, we're equally crazy. उसने बोला harder to convince. Harder to convince. शफक ने सच बोल दिया गलती से. नहीं, of course, like we're a brown family, dramatics तो होना ही था. Like, बिल्कुल, that उसके was a बिना तो given. काम नहीं चल सकता. That's a given. If there's nothing happening, it's not fun anymore, I guess. So as I think we took advantage of it too. Like हमने dramatics sort of enjoy किए. क्योंकि मैं चाह रहा था कि मतलब कुछ एक ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जो मैं अपने बच्चों को सुनाऊं कि यार ये करके मैंने शादी की थी तुम्हारी माँ से, तो उसके लिए थोड़ा फन चाहिए था लाइफ में. कौन सी ट्रेन पे भागे थे? मैं जहाज ढूंढ रहा था, ट्रेन नहीं ढूंढ रहा था, पाकिस्तान में था मैं. That's true. So I want to ask about that, like 7 years apart, right? I'm suspecting that Shafak, you were here in Canada, Yeah, I right? was in Canada. Canada, and you were in Pakistan, so that's like quite a big distance. So like Ali, I want to ask you, like being a desi man, like आपको कभी किसी ने नहीं बोला कि ओ वो देखो वहाँ चली गई है, वहाँ पे पढ़ी है, yes, whatever it is. And I know Shafak, you, because me and Shafak have a similar professional background as well with policies, so which is quite like, you know, there's a lot of movement in it and there's a lot of change in it as well. So like आप as like a partner, एक तो आप दूर हो, सब convince कर रहे हो, आपको कभी insecurities हुई? और like, you know, कई दफा लोग कहते हैं लड़कियां बाहर चली जाएंगी तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, या लंबी मंगनियां नहीं चलती हैं. All these I've heard so much, right? So like for you as a man, I want to hear आपकी तरफ से, what was that like? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी टाइम पे जब मैं 2014-15 के टाइम पे जब मैं बताता था यार मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर, तो पहली बात को मानता नहीं था. मुझे कहते थे तू किसी लड़की से सीरियस नहीं हो सकता, that's not you. So Give him a second. Okay, take it out. बहुत perfect है. तो इसलिए मुझे इस इनसिक्योरिटीज क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि कोई मानता ही नहीं था. जब कोई मानेगा तो मुझे ऐसी बातें करके मैनिपुलेट करेगा ना. तो वो कहते थे यार तू छोड़ दे, तेरी गर्लफ्रेंड, ऐसे बोलते थे. नहीं, वो कहते थे पहले तो वो कहते थे चल ना पिक्चर, वो कहता दिखा कोई नहीं सबूत देना, तो मैं कहता जरूरत नहीं है मुझे. मैं कहा मेरे पास जितनी सबूत देने की क्या जरूरत है भाई, बिल्कुल ना मानो मेरी तरफ से. So Shafak, what about you? Did you ever feel insecure, or were there times when somebody would be like, you know, Damag aapka bhi, okay, you're in Canada now, he's there, okay, would, you know, that's like हमें जिस तरह की दफा लगता है कि जब हम यहाँ पर आते हैं, आप you grow different in a different way, आपको और ideas expose होते हैं, घर से दूर होते हो तो आपको और opportunities मिलती हैं to understand yourself. Did that like was there tension that was growing inside of you कहीं कभी भी? Yeah, 100%. Like for me, insecurity though 100%, because I was like, you know, I'm sure he has other options. Pakistan mein hai, kahin bhi nahi hoti hai. So and but I think that the reason why it worked our long distance was it was based on trust. So if it's based on trust, then I think it kind of it works, you know. And rahi baat mentality ki, yeah, yahan pe aake I understood myself. I knew who I was. I grew. I evolved myself and I understood who I am, and that is why I think I felt कि नहीं, Ali is someone I want to be with, because I understand myself better in the sense कि this is someone who I can connect with emotionally before all other aspects. Exactly. So that was so more important. Yeah, long distance में हमें फायदा ये था कि मेरी जब सुबह होती थी तो इधर इसकी रात हो रही होती थी, तो ये आती थी तो पूरा दिन थकी भी आएगी and all that, तो कोशिश ये होती थी कि पूरा दिन बंदा जिस फ्रस्ट्रेशन से होके गुजरता है, चाहे मैं पूरा दिन गुजर रहा हूँ या नेक्स्ट पर्सन जो होता था वो रिलैक्स होके, अभी उसकी मॉर्निंग होती थी तो वो फ्रेश उठता था, तो अगले का फिर वो फ्रस्ट्रेशन जो होती थी, अगला कोई पूरा दिन गुजरा तो वो उसको सुनता है, फिर उसको समझता है, फिर उसके साथ डिस्कस करता है कि अच्छा तुम्हारे साथ इट्स ओके हुआ एंड ऑल दैट. तो हमारे बीच में हाँ, अगर हम फिजिकली साथ होते तो में हमारा प्रोबेबली प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारा नहीं ख्याल था कि हम सरवाइव कर पाते. लेकिन ऑन कॉल लोग कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वर्कआउट नहीं करता, लेकिन हम हमारे लिए डिफरेंट था, क्योंकि हम आते थे, हम ट्रांसपेरेंट होकर एक दूसरे से बात करते थे, जो दिन में गुजरा जो हुआ हम शेयर करते थे. उस यूनिवर्सिटी टाइम था तो यूनिवर्सिटी में ये हुआ फलाना ऐसा, ये गपशप किया,
फलाना लड़की को ऐसे लाइन मार दिया, आज उसको ये डायलॉग मार दिया, स्टफ लाइक, हाँ मैं ये बातें भी मतलब आज ये शुगर लगा लिया, वो कर लिया, सो Too transparent. एग्जैक्टली टू मच Little bit too much. सो फिर उसके साथ ना हमारी इमोशनल जो कनेक्शन था ना वो काफी स्ट्रांग हो गया, की वजह से लाइक But it did take us 4 years to perfect the long distance aspect Exactly. of the relation. Like 4 years hमें समझ आया अच्छा नहीं हम दोस्त नहीं, अब हम like it's more than friendship now. Yeah, your partner is in आपने this. उसी mindset से किया था, but it was like after 4 years we're like, oh अच्छा, like this is actually might go somewhere. Wow. So because the emotional connection became that strong, we were like, okay, it's ready for the next step. So two things you guys said. You said Shafaq trust, and then Ali आपने transparency बोला, and I loved both those things. के जब भी मैं सुनती हूँ ना लोगों की long distance relationships के बारे में या कुछ या अपनी personal friends में यही होता है यार, पूरा दिन वो कहीं और होता है या वो कहीं और होती है, पूरा दिन बात नहीं की मुझसे तुमने, लाइक मैं तुम्हारा मैसेज का वेट कर रही थी, या ऐसी छोटी छोटी पेटी चीज़ों पे. और आई फील लाइक ए रिलेशनशिप अगर स्पेशली इफ यू वांट टू परस्यू इट विद समवन फॉर द लॉन्ग टर्म, these petty small things, how can they be part of your life, especially with distance, right? You can't expect that person to be up at your 6 a.m. और जबकि उसके so that's थोड़ी fair expectations रखना, and again trust और transparency के वो सो रहा है या सो रही है इसलिए वो अभी टाइम नहीं दे सकती, या जब आपको टाइम चाहिए आपको टाइम चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? So I really like those two things. I appreciate that. ना इवन दो मतलब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो या आप साथ हो तब भी दोनों सिचुएशन में आपको अपने पार्टनर्स को स्पेस टाइम देना चाहिए. दिन में अगर वो तुम्हारे साथ 24 घंटे है तो एटलीस्ट तुम्हें 1 से 2 घंटे उसको अपने लिए देना चाहिए कि वो अपने साथ बैठ सके, अपनी कोई फेवरेट चीज कर सके. उसको बुक रीडिंग का शौक है या उसको वॉक करने का शौक है या उसको कोई अपना फेवरेट शो देखने का शौक है, एटलीस्ट 1 से 2 घंटे अपने पार्टनर को सेपरेट देने चाहिए अपने साथ. इंसान अगर खुद के साथ अगर खुश होगा ना तो फिर इर्द गिर्द जो भी होगा उसके साथ खुश होगा. बिल्कुल. पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट अभी हो गई है. सारे याद रखें. Self love is important. Self love is very nice. नहीं तो अच्छा लाइक अगर लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि अगर लाइक जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अगर आ रही है रिलेशनशिप में, लेट्स से राइट, कि किसी को भी आ रही है फॉर एनी रीजन, अब वो एक सर्टेन डिग्री तक आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? आपने अपनी इनसिक्योरिटी को खुद एड्रेस करना है. लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाउ वुड यू टेक दैट, कि क्या एक पार्टनर को कुछ अपने दूसरे बंदे को दिलासा देना चाहिए या बी लाइक यू नो व्हाट, फिगर इट आउट ऑन योर ओन? एक हद तक इंसान इनसिक्योरिटी के साथ खुद लड़ सकता है एक हद तक, लेकिन उसको समहाउ अपने पार्टनर की जरूरत पड़ती है. इन द एंड आपको इनसिक्योरिटी है, टॉक अबाउट इट. बैठो, मुझे ये मसला है, मुझे फिगर आउट नहीं हो रहा है, टॉक अबाउट इट. जब तक बात नहीं करोगे वो इशू क्लियर नहीं होगा. जब तक अगला आपको सब वो कहते हैं ना कि आपको अश्योरिटी चाहिए होती है, आपको पता है कि वो आपको प्यार करता है, लेकिन फिर भी आपको उसके मुंह से सुनना होता है कि भाई ही लव्स मी या शी लव्स मी. तो इनसिक्योरिटी में भी सेम फार्मूला है. आपको बात करनी होती है, आपको अश्योरिटी चाहिए होती है कि हाँ मैंने ये stuff चल रहा है. And both of us have dealt with it. Like we did. Extreme insecurity, both of us. लेकिन यही था कि हमने बैठ के डिसाइड किया कि नहीं, हमने एक दूसरे को बताना है, because if we don't tell each other, the assumption keeps getting worse. I understand कि जो आप दोनों का जो point of view है कि like it's your own problem. At most of the time, insecurity I think stems from the fact कि आप खुद adequate feel नहीं करते कि I'm not good enough to be in this relationship. And that's okay. I think everybody thinks like that. I think like it. I'm sure he thinks like it too. Doubt हर कोई करता है. Everyone does. But I don't think if you have that friendship foundation too, then आप बता सकते हो कि you know, let's talk as a friend. मुझे ये चीज़ issue कर रही है, help me with it. You know. Yeah. And just be. We've tried to be transparent. I mean, it's you know, it's hard to be that vulnerable. But वही बात है कि can you be that vulnerable with your partner? Wow. So that's amazing. I think that's very beautiful to like say that, right? Okay, exactly, like a relationship you have to be vulnerable, right? And I think we've never realized कि ये एक बहुत core हिस्सा है of a true partnership in which you are vulnerable, right? जिसमें आप अपने आप को आप अपनी weaknesses बताते हो और आप अपनी strengths भी लाते हो, right? और क्योंकि this is completely contrary to what I've heard. Like I've grown up in a very conservative माहौल, right? और मुझे जब से याद है, मुझे सबने यही बात बोली है कि शादी के बाद या शादी से मतलब जो आदमी है ना, उसको कभी भी कुछ नहीं, अपनी कोई कमजोरी नहीं बतानी है. Like never tell them your कमजोरी. And because like
And then because they're saying he's gonna come back and like, you know, use it against you. And I'm like, why would I want to be married to somebody who I can't trust? Like जिसने मुझे आके weaponize कर, like he's gonna weaponize something about me और फिर मुझे ही आके affect करना, right? Like ये पता नहीं why people think that's okay to say. Like मुझे इतने लोग, and not even like aunties, like women, like younger women, like closer to my age, who've come and said this to me, and I'm just like, and then I think about them, like, what type of marriage are they living in? I've heard that too. Have you heard that? Yeah. Oh yeah, I've had a friend tell me, you know, did you actually, like, I told her something about कि मैंने हाँ Ali से बात की. It's like, oh my god, you told Ali that? I was like, well, yeah, like he's who else am I supposed to go tell? सब बातें नहीं बताते, you know, like it's gonna come bite you in the ass one day. I was like, okay, well, I'll wait for that day, but until then, I'm going to continue sharing with the person I'm supposed to be spending my life with. Like, वही ना, इतनी टेंशन है तो पहले ट्रस्ट टूटने का वेट तो करो, फिर डिसाइड कर लेना, फिर नेक्स्ट टाइम डिसाइड करना कि बताना है कि नहीं बताना. क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिवोर्स करना इतना आसान नहीं है, सो आपको वापस जाना होता है. तो पहली दफा ट्रस्ट कर लो, दूसरी दफा नहीं करना. Very sound advice. Very sound advice. Public service announcement. हर 2 मिनट बाद अली हमें public service announcement देगी. You know, मैं तो पहले सोची थी अली ना, वो सिर्फ वो जो नहीं होता, वो ब्यूटी फैक्टर के लिए हम उसको लाके बैठा रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में हंसबे हाल पे वो जो औरत को बैठाया होता है सिर्फ हंसने के लिए, राइट? और बाकी और आदमियों का नहीं, वो इतनी अच्छी बात कह रहे हैं. बाकी में मुझे लगा गला खराब है आज, शायद बात नहीं होगी. मैं बातें बहुत अच्छी करती हूं. माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है. हम ना एडवाइस दूसरों का एडवाइस अच्छी देते हैं, खुद की परेशानी. मैं कहने वाली थी कि मैंने शुरू में कहा था कि हम कपल थेरेपी करें, पर मैं जितनी आपकी बातें सुनती जा रही हूँ, मैं यहाँ चुप बैठ के ना, अच्छा तो ये है, ये वो जो पिछली दफा हुआ था वो ये हुआ. हाँ अच्छा ये हुआ था. अच्छा इसलिए मैं क्रॉनिकली सिंगल हूँ. अच्छा मैं भी हम लाइक अच्छा ये था, गलत था. मैं बैठ के ना यहाँ पे सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रही है और कुछ नहीं हो रहा. थैंक यू फॉर द एडवाइस एंड आई ओपनिंग टॉपिक्स. अच्छा, इसी टॉपिक पे ना एक बड़ी इंटर रिलेटेड बात है, जहाँ पे ना कि उसको अपनी घर की कोई बात नहीं बतानी है. तो ये जो सेपरेशन ऑफ घर है, राइट, लाइक कि लड़की की जो फैमिली है वो उसकी बातें नहीं, लेकिन जो लड़की अपेरेंटली है, शी हैज टू बी, आई गेस, द कंफर्टर, या उस घर की जो भी क्या कह सकते हैं ना, थेरेपिस्ट, उस घर की स्लेव. कई दफा लाइक दीज कॉन्सेप्ट्स हैव बीन इनग्रेव्ड, राइट, फॉर लाइक द लड़के की फैमिली. मगर जो लड़की की फैमिली में हो रहा है, इट शुड नॉट कम टू द गाय, क्योंकि लाइक देयर इज दिस इंफीरियरिटी, राइट, और इन जो बनाई हुई है सोसाइटी में, मुझे इसकी समझ नहीं आती है, राइट, कि हाउ कैन यू सेपरेट दैट? हाउ डू यू सेपरेट somebody from their, हमारे culture में especially I think, जहाँ पे हम we're so embedded within our own families, right, कि एकदम से आप कैसे expect कर सकते हैं कि लड़की का वो सारा background ही you know खत्म हो गया ना. Even on these dramas to this day, like मुझे समझ नहीं आती when a girl has to ask to go to her parents' house or like to visit them, right. और कई दफा मुझे ना and I'm rambling on a little bit, लेकिन मैं कई दफा अभी भी देखा है कि they're like, वो आई है let's say कि बाहर से they go and visit, they go back to Pakistan for example, तो लड़की goes and stays with her parents place और लड़का अपने parents के घर पे, and then ससुराल वालों को इससे मसला है कि वो अपने माँ बाप के घर में क्यों रह रही है, हमारे पास क्यों नहीं आ रही है, right, like कई दफा ऐसे मैंने कई देखे हैं. ये पुराने खैर पुराना ज़माना you think yeah, मगर it still happens to this day though, right, like it happens, right, like इतने tensions हैं, like but we don't, हम लोग बात कैसे कर सकते हैं इसके बारे में. I'm not saying कि किसी को value judgment करेंगे ये वो, लेकिन ये जो separation of households हैं, is that like, is it even possible in a marriage? Like how can you separate two households? Interesting question. अच्छा, you want me to take the first bit? Yeah, you go ahead. Okay. I think आपने दो चीजें अच्छी मेंशन की. एक तो दो डिफरेंट चीजें. एक तो था ना कि एक दूसरे के हाउसहोल्ड के मसले कैसे सेपरेट करना और किसके मसले ज्यादा इम्पोर्टेंट है. If your partner is in distress, आपको नहीं पता है वो किसकी वजह से distress में है, तो how are you supposed to help them through? How are you supposed to maintain your distance, right? क्योंकि दोनों तरफ होते हैं of course मसले. Like अली की फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो issues दोनों तरफ होते हैं. And if I don't know that he's upset because of something that happened in his family, how am I supposed to help him out with that, right? अगर मैं जाके कोई बात कर दूं about family, or you know, then it's just gonna get worse.
But if I know that he's already dealing with issues, maybe I'll start with a lighter subject, right? So एक तो ये था, दूसरा था कि oh yeah, the very good question was कि अगर हम वापस जाते हैं पाकिस्तान और मुझे अपने घर में रहना है, अली को अपने घर में रहना है, yeah, it's definitely considered weird, and I've been through that. And it was weird for me because I was like, I just want to stay over at my parents. They were like, this is not a sleepover. You can't have a sleepover after you're married. I'm like, but I'm sleeping over at my husband's. Like, I don't understand what the problem is here. So 100%, I think it was more, yeah, I felt like I was being stupid कि मुझे सब इस तरह से देखा था, तुम्हें क्या हो गया, तुम शादी के बाद हमारे घर में नहीं रुक सकती हो. I was like, 2 सेकंड पहले ये मेरा घर भी था. भूल गए अभी निकल. You know, so yeah, I think it's the mentality, but I think again, I feel like guys, we sat in the plane and everything changed, you know. So I feel like as soon as you cross the border, those things don't matter, which is society, which is ridiculous, because how is that my home? How is that not my home in Pakistan, but this is my home in Canada? Right? It makes no sense. It's the, I think again, it's the log kya kahenge wala concept. बिल्कुल. And it hurts because 2 सेकंड पहले मुझे पराया कर गया. Like, it's weird. ये वहां से भी बहुत आता है ना कि एक लड़की की जब शादी होती है तो वो रुखसत हो जाती है, तो she doesn't have to, like, वो उसका घर नहीं है बेसिकली. तो अगर आप चूज करते हो कि जैसे अगर अली आपके घर जाके रहे तो पेरेंट्स कहेंगे, लाइक लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, उसका अपना घर है, वो उसकी शादी हो चुकी है, तुम लड़के के घर में तो ये इट्स अ पावर पोजीशन एज वेल. औरतों को वो हक नहीं है कि वो शादी के बाद वो भी कुछ कर सकती हैं या दिखाया जा सकता है कि उनका भी घर है इक्वली. ये नहीं कि औरत का घर ज्यादा बड़ा है या हस्बैंड का घर ज्यादा बड़ा है, पर क्योंकि आपको रुखसत कर दिया गया जाता है ना शादी के बाद, तो वापस आना लोग सोसाइटी में समझते हैं कि ये, आई फील लाइक ये दिस इज वेयर इट स्टेम्स फ्रॉम, के वियर्ड लगता है. सेम गोज विद अगर औरत की फैमिली उसके साथ आके रहे बाद में शादी के, राइट, स्पेशली अगर हस्बैंड का घर है, तो these things for sure. अभी आप कुछ कहने वाले थे? नहीं. अच्छा. ठीक है. अच्छा, मुझे तो एक बड़ा मजे का सवाल पूछते हैं कि लाइक शादी पे है क्या, लाइक व्हाट इज शादी, व्हाट डज इट मीन टू यू गाइस? We're figuring it out too. Yeah, we're figuring it out. शादी है क्या? I mean, शादी अच्छे लफ्जों में बोलूं तो सोसाइटी या माँ बाप या लोगों की इजाजत से लड़का लड़की साथ रह रहे हैं. अली क्या बात है, खूबसूरत. इरशाद परफेक्ट यार. मैं भी फिस्ट बम्प यार. मुझे नहीं पता. मतलब मैं अभी इतना कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ हूँ कि मैं मतलब शादी क्या है और ये क्या है. ये तो आप वो वाली बातें करना कभी जरूर नहीं, लेकिन आपने बड़ा परफेक्ट दे दिया. बिकॉज मैं कहती हूँ, अच्छा अगर मैं होती ना यहाँ पे जो बड़ी कोई ट्रेन फैसिलिटेटर, तो मैं जो जवाब मुझे शायद चाहिए था, मुझे शायद वो मिल गया है. दिस इज वेरी ट्रू कि जो इस शादी का कॉन्सेप्ट है, इट इज डेफिनेटली दिस, ये माशरे की तरफ से इजाजत लेना और माँ बाप की तरफ से इजाजत लेना, दो लड़का लड़की इकट्ठे साथ में रह के हलाल घर बनाए, राइट, हलाल वे. लेकिन इस बात में हकीकत है कि मतलब आफ्टर निकाह या आफ्टर शादी जो आई डोंट नो नेचुरल थिंग है या खुदा की तरफ से एक रहमत होती है, एक बरकत होती है उस रिश्ते में. मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में भी वो खूबसूरती और वो वर्ड क्या होगा, मतलब यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट. मतलब शादी के बाद, मतलब जो निकाह के बाद जो आपके रिलेशनशिप में एक चेंज आता है, खूबसूरती आती है, एक बरकत सी आती है, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते. वो बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है. मतलब हम काफी अरसा एज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज and we spent time together before and after marriage, so exactly. After it was so different. एक अजीब सी, एक अजीब नहीं कहूँगा, बहुत मुख्तलिफ सी एक खुशी सी होती है, बहुत खूबसूरत चीज होती है. So अब I don't know क्या चीज है. And I mean, if you're not experiencing this beautiful, फिर कोई मसला है. Because it should be beautiful. Like, for sure, it's like a blessing, I guess. Like, आप लोग, yeah, it's a pact, right? Like, it's a partnership, or I guess a blessing from and I mean, God, I guess. If you're not enjoying it, then there's a problem, right? Like, आपको फिर शादी ही नहीं करनी. That means you weren't ready or something or the other. I think एक दूसरी मगर I think ये जो enjoyment की भी बात है, because I know many
just like young girls as well who got married, you know, right after their undergrad, or जो भी हो, या कुछ लड़कियां ऐसी, you know, that have grown up बस शादी ही करनी है कि yeah, that's it, right? या तो you're dreaming about शादी in addition to everything else you're going to do in your life, yeah, that is your ultimate goal. And abhi like up until recently too, like I remember I met एक लड़की थी, bright girl, and we were just shopping together and getting some things, and I think हम dollar store में थे. And she comes from a very affluent background as well, and she was just like she just said to me, she's like, oh god, किसी चीज को देख के ना कि just marry a rich guy so he can get you everything. And I just like looked at her and I was like, why not just get it yourself, right? And then she's like, nah. अब मुझे like इतना अजीब लगा, right? और फिर उसके बाद like एक और like similarly like another incident with that happened to me directly, like when someone was telling me कि don't buy yourself a diamond ring, वो आदमी लेके देगा, और अगर तुम खुद ले लोगी तो फिर वो क्या लेके देगा. Ali's pissed. He wants his refund now. No, I actually did get myself diamond rings for my undergrad because I was so proud of myself. Wow, good I was like, I'm job. gonna do this, and then I bought it for myself. फिर मैंने masters के बाद सोचा था I'll get myself a diamond ring, लेकिन वो फिर दे दिया था, तो मैंने कहा चलो आ गया तो मैं क्या करूँ. Public service announcement from Shafak. आप खुद खरीदो अपनी डायमंड रिंग, ठीक है? जरूरी Celebrate शादी करो. के बाद ये अपनी पढ़ाई पे भी खरीद सकते हो, जॉब मिलने पे भी खरीद सकते हो, ठीक है? All those are And buy the guys the things, you know, buy him diamonds. They like that. 100%. पहनने का शौक नहीं है, लेकिन रखने का शौक है. सजा Because के. I think like यहाँ पे जहाँ पे मैं जाना चाहती थी कि मुझे ये इतनी problematic बात इसलिए लगती है क्योंकि you're setting up these false pretenses for people कि this is what शादी is going to be, right? वो जो ख्याल हमें सिखाया गया कि शादी के बाद करना, if you want to travel, do it after शादी. आपने ये कोई what is, we've made it into this like, you know, like वो जो what is it called, the Christmas syndrome, कि when you wait up to that event कि पता नहीं क्या होना है Christmas वाले दिन, and then you just open your presents and you're like okay बस Christmas खत्म होगी, या आपको पता नहीं ईद का build up to ईद आ रही है, और ईद पे सब लोग सिर्फ खाना खा के सो जाते हैं, right? But it's everything, it's that like, you know, point up. So many times, and then I've seen these marriages, जो examples मेरे दिमाग में भी हैं भी, they broke up right within like I think a few months, क्योंकि वो एक आइडिया के पता नहीं एक आपने आदमियों के ऊपर भी इतनी अनड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि उसने पता नहीं आपकी कौन कौन से ख्वाब पूरे करे. और think about it, like मैं अभी I'm 28, Shafak you're 27, इतने में लड़कों की भी होती है जब शादियां होती हैं. I know कि what I can afford, I know what I can do, and same goes for men as well, unless कि वो पता नहीं किसी टेक्सटाइल मिल का बेटा, ओनर का बेटा है, फिर अलग बात है, right? मगर आम आदमी like, और स्पेशली अगर लेट्स से हम यहाँ कनाडा वगैरह में रह रहे हैं जहाँ पे आपके पास माँ बाप की कोठी या हवेलियां नहीं हैं, so you're paying your rents, you're paying your bills, you're doing all of this, and you expect this man now to like, you know, babysit you as well. I find that a little difficult, right? अब फिर हमारे पास ये जो word फिर partnership आ जाता है. I don't know उर्दू में क्या कहेंगे partnership को, like समझौता नहीं, समझौता तो compromise होगा ना. Like हम partnership के बारे में नहीं बात करते ना कि we're entering एक partner बनना. दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं. बाकी में यार रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदारी एक ओके कमिटमेंट पार्टनरशिप इतनी हमारी फेल उर्दू है, अस्तगफिरुल्लाह, लाइक सोचना चाहिए सब. मुझे 4 महीने हुए हम वाइट वॉश हो गए. यहाँ अली भाई मैं तो सर्च करने लगी व्हाट इज पार्टनरशिप इन उर्दू, लाइक हम सब. मेरी नानी बैठी होती ना यार, एक दिन कॉल करूं उनको यार इस वक्त तो ना पूछ लो. अच्छा नहीं, ये उर्दू पॉइंट ना मुझे कह रहा है कि लुगत कहते हैं ना डिक्शनरी को, लुगत. Oh my god. अच्छा, so this is very interesting. Like उर्दू पॉइंट इज सेइंग कि पार्टनरशिप इज हिस्सादारी और शिरकत. हिस्सादारी का तो मतलब है कि वो लीगल इकोनॉमिक टर्म है, और शिरकत इज टू बी शामिल इन समथिंग. तो ये फेल्ड डेफिनेशंस ऑफ बीइंग पार्टनर. रिश्तेदारी है उर्दू का बस बच्चों ये समझ लो रिश्तेदारी. चलो रिश्तेदारी, क्योंकि हाँ हिस्सेदारी में ऐसा लगता है कोई वो होना है आपका, लाइक यू गिविंग समथिंग एंड टेकिंग समथिंग. शरीका जिसको कहते हैं पंजाबी में, जिसमें से आपकी जायदाद में से किसी ने आपकी हिस्सा I don't know but I think it's very important to, I think ये यहाँ पे डिफरेंशिएट करना कि हम एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में कब एंटर हो रहे हैं, राइट? एक पार्टनर बन रहे हैं, कंपेनियन कब बन रहे हैं. तो पता नहीं, ये मुझे बड़े अजीब सवाल लगते हैं, मगर आई थिंक अली आपने बड़ा अच्छी तरह से इसको ओपन किया, एंड आई थिंक बोथ ऑफ यू गाइस हैव really well explained it really well.
अच्छा, एक दूसरी बड़ी टर्म मैंने बड़ी सुनी हुई है, मुझे तो हर वक्त बोलते हैं क्योंकि मैं बोलती बहुत ज्यादा हूँ और अपेरेंटली मेरा दिमाग बहुत खराब है, एज बिकॉज ऑल द आंटियां हु हैव मेट मी, तो मुझे तो ये बोला जाता है ना कि कॉम्प्रोमाइज करो, मर्द तो ऐसे ही होते हैं। तो इसका क्या, लाइक व्हाट डज दैट मीन? लाइक मुझे तो एवरी टाइम आई हियर द वर्ड कॉम्प्रोमाइज आई जस्ट वांट टू लाइक बैंग माय हेड अगेंस्ट अ वॉल, क्योंकि I'm like मुझे नहीं कॉम्प्रोमाइज करना, व्हिच मींस कि लाइक मुझे हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना है। वो इंसान के साथ तुम्हारी कोई मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, वैल्यूज नहीं मैच करते हैं, कुछ भी है, मगर कॉम्प्रोमाइज करो क्योंकि मर्द ऐसे ही होते या हैं। आप दोनों बताओ किस चीजों पे जैसे आपने अली कहा समझौता, कॉम्प्रोमाइज आप किस चीजों पे करना होना चाहिए और किन चीजों पे, डू यू हैव सम एग्जांपल्स बोथ ऑफ यू, लाइक कॉम्प्रोमाइज व्हाट डज इट लुक लाइक? कॉम्प्रोमाइज तब होता है जब जब आपकी शादी रजामंदी से ना हुई हो। आई थिंक सो। इंटरेस्टिंग। मतलब आप जबरदस्ती हो ना, कि मतलब आपको लड़का पसंद नहीं है और लेकिन अपने फैमिली के लिए आपने शादी कर ली है, तो पहला वो शादी का पहला स्टेप ही आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ ना फॉर द फैमिली। तो फिर वो आपका पूरा रिश्ता कॉम्प्रोमाइज में ही चलेगा ऑब्वियसली, अनलेस अनटिल आपको प्यार ना हो जाए एंड में। सो जो बॉलीवुड हमें सिखाता है कि हो जाता है, लेकिन वो होता नहीं है। वो तो बहुत कम लोगों के लिए होता है, लेकिन हाँ, आई डोंट know if I agree with that. I think compromise चाहिए होता है, sacrifice नहीं करना चाहिए, because then that's agree, right, because then if you're sacrificing then you shouldn't be getting married, because then it's how I see it visually is कि आप अपना soul के pieces करके किसी को दे रहे हो, and that's unfair. Compromising is sort of like you know, you're both on you're meeting each other halfway. Sacrificing is you're doing more than half. तो मतलब मैरिज में फिर कॉम्प्रोमाइज क्या डेफिनेशन होगी? मैं पूछना चाह रही थी क्या अगर जैसे लाइक बेसिक स्टेप से अगर मैं स्टार्ट करूं, मतलब क्या, मुझे अगर थोड़ा सा समझाओ, मैं शायद नहीं समझ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा समझाओ। हम खुद नहीं समझ रहे कि होता है क्या, मतलब किस चीज को यहाँ शादी में किस चीज को कॉम्प्रोमाइज कहा जा रहा है, कि लड़की ही खाना बना के, लड़की ही बर्तन धो के, लड़की ही बाहर से नौकरी करके वापस आके, लड़की ही घर की सफाई करके, लड़की ही ये इसको कॉम्प्रोमाइज इसको कॉम्प्रोमाइज कहते हैं ना हमारी सोसाइटी में, ये सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज में आता है। मैं वही क्लैरिटी चाह रहा हूँ कि इसको कॉम्प्रोमाइज कह रहे हो कि कोई बड़े स्टफ को कॉम्प्रोमाइज कह रहे हो? देखो ये ऑल ऑफ दिस, लेट्स से कि यहाँ से शुरू होता है कि लड़का कह रहा है जी आपने जॉब नहीं करनी है, चलो नहीं, लेकिन वो घर उसका बड़े अच्छे घर वाला है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है ना। या कॉम्प्रोमाइज करना है कि तुमने यू हैव टू लिटरली एसेंशियली अब अपने आप को, वो उससे माइंडसेट नहीं तुम्हारा मैच करता, लेकिन कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है ना। कुछ क्लिक नहीं हो रहा, नहीं चुप करो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। आपकी गट फीलिंग कह रही है कि मुझे लगता है ये गुस्से वाला ज्यादा है, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लो। सारी रात वो अपने दोस्तों के साथ बाहर रहता है, घर नहीं आता, कोई बात नहीं, आदमी ऐसे ही होते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लो। एंड आई थिंक अली, आई वाज टॉकिंग टू यू लास्ट वीक और समथिंग, और मैंने आपको बताया कि पिछले हफ्ते ही मैंने फोन पे ये सुना कि मेरी अम्मी को कोई बोल रहा था कि मेरी अम्मी को भी लोग ना कुछ बोलते ही रहते हैं, बिकॉज माय मॉम इज अ सिंगल मदर एज वेल, तो उनको आज तक ना लेसन ही मिलते हैं कि हाँ औरत को कॉम्प्रोमाइज कैसे करना चाहिए। तो लेकिन उनको ये बोल रहे थे कि मर्द चाहे रात को जुआ खेले, शराब पिए, बाहर रहे, जितनी मर्जी, और लड़कियां रखे, शादियां कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन अगर वो रात को तुम्हारे पास वापस आता है ना, तो वो तुम्हारा ही है, राइट? और ये मैं कोई 1900 डूड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आज के जमाने की बात कर रही हूँ। एक्चुअली रात तो नहीं गुजार रहा, रात तो घर। हाँ, रात को ओ बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। यार मुझे नहीं पता इस सवाल, इस चीज को मैं कैसे जब रिस्पांस दूं। हाँ बिल्कुल नहीं आई मीन आई थिंक मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि अगर कोई भी लड़की ने कभी भी ये सुना हो और आपको कभी भी किसी ने ऐसे बोला हो, लाइक आई मीन आई थिंक दिस इज जस्ट रॉन्ग, ये गलत है, इतना गलत है, और हम इतनी आसानी से बोल देते हैं। Oh man, we both have sisters and we would never want them to hear that. Exactly. Right? Exactly. There you go. And I mean हमारे सामने हमारी बहनों को ऐसा बोले तो हम तो कभी लड़की ना दे, बात ही खत्म हो गई। अगर देखो ना, मतलब कौन सा बाप ऐसा चाहेगा कि मतलब उसकी बेटी ऐसी जगह पे जाए, मतलब जहाँ उसको ये चीजें सफर करनी पड़े, जहाँ उसको he said the right word here, suffer. That's not compromise. Exactly. So that's what I wanted to get at. That's not what a compromise is. That is suffering. I'll tell you compromise.
मैं खाना बना रही तो अली पीछे बैठे के बर्तन धो रहा होता है. Yeah. That's Beautiful. compromise, because we're both tired and हमने दोनों ने पूरा दिन आजकल तो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, आज कंप्यूटर स्क्रीन सामने बैठे हुए थे, हम दोनों की आंखें दर्द कर रही है भाई, और कुछ तो पाँव में अब दर्द नहीं हो सकता, वो एक्सक्यूज नहीं दे सकते. If he's cooking, I'm doing the dishes. If he paid today, I'm gonna pay tomorrow. Stuff like those are compromises because we're both doing it. Yes, क्योंकि आपने Beautiful. वही पुरानी बात कहूंगा जो क्या लोग कहते आते हैं कि भाई आप गाड़ी की दो पहिए हो, एक पहिया अगर खराब हो जाए तो गाड़ी गई. ये पुरानी बात है, लेकिन अली मैंने 2 पहियों वाली ना गाड़ी नहीं आज तक देखी, लेकिन यार मैं मोटरसाइकिल ठीक है. हम दो और हमारे दो. मैं मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, 2 पहियों वाली मोटरसाइकिल. तो मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, नहीं मैं समझ गई हूँ, मुहावरा यूज कर रहा हूँ, लेकिन वही बात है कि अगर आप एक दूसरे को अपने नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं सपोर्ट कर सकते हो तो फिर मत रहो साथ यार. नहीं that's good. हाँ go ahead मैंने बहुत बोल लिया. अभी प्लीज और भी बोलना. पर नहीं, I was going to say कि आप जैसे कह रहे थे कि अगर जैसे अरेंज शादी है, अरेंज नहीं, खैर फोर्स शादी है, तो उसमें एक बंदा तो क्लियरली कर रहा है ना कॉम्प्रोमाइज या सैक्रिफाइस. चलो कॉम्प्रोमाइज नहीं बोलेंगे, सैक्रिफाइस कर रहा है कि एक तो उसको पार्टनर पसंद नहीं, ठीक है, लड़की हो या लड़का, शादी वो करे, फिर पता नहीं कहाँ रहते हैं, कैसी बातें हैं, मेंटालिटी नहीं मैच करती, कंपैटिबिलिटी नहीं है, जो भी, तो ये सैक्रिफाइस हो गया. एक ना एक तो कर रहा है, या शायद दोनों ही कर रहे हैं जस्ट टू कीप फैमिलीज हैप्पी, राइट. फिर कॉम्प्रोमाइज, I feel like compromise is like, क्या नहीं, actually I don't feel like, मैं पूछूंगी कि अगर जैसे नहा के गीला तौलिया बेड पे रख दे और जिससे बंदे को नहीं पसंद, क्या इस पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? क्या ये like what is this? नहीं करना चाहिए, right? like ये सबसे बड़ा. So funny that actually happened कि हम पहले जब मिलते थे and I was like, okay, like I came into the room and it felt like there was a hurricane. Toothpaste का ढक्कन यहाँ पे, मोजे वहाँ पे है, तौलिया यहाँ पे, and I was like, Bachelors. Yeah, I was like, you know what? One step at a time. Not my day. I'm tired. Not the battle to fight. तो मैंने उसको किया कि लड़का अच्छा है, ये बाद में देखी जा सकती है. And honestly ये होता है, because like you know what? If he doesn't do it, he's doing other things, right? And if वो वाकई इतना ज़्यादा मसला है, then have a conversation about it. क्योंकि देखो ना, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल 25 साल या 26 साल की उम्र में शादी कर रहे हो, तो उससे पहले आप अपने माँ बाप के घर में रहते हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, चलो हॉस्टल में रहते हो, अपने रूम में रहते हो, तब भी आप मतलब शहजादियों की तरह रहते हो. ये उठा के वो फेंक दिया, फलाना वहाँ फेंक दिया, माँ ने उठा लिया, पता है पीछे ये कर लेगा या वो कर लेगा, अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो मैं वीकेंड पे कर लूंगी, स्टफ लाइक दैट. लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ रहते हो एक छत के नीचे, तो हाँ फिर एक दूसरे के लिए मुश्किल होता है, स्टार्ट में होता है, क्योंकि आप स्टार्ट में एक दूसरे को जो स्टार्ट का जो आई थिंक जो मेरा ये मानना है कि निकाह के साथ ना लड़का और लड़की का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि 3 से 4 साल तक आपने एक दूसरे को डिवोर्स नहीं देना. ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट. You know what? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मतलब है. आप पहले से 3 से 4 साल के दौरान ट्राई तो करो दूसरे को डिवोर्स नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो जाए. No, don't say जो मर्जी. Then there's like domestic abuse too. नहीं, जो मर्जी में फिर अब्यूज या नहीं, अब्यूज नहीं ला रहे, बस लाइक ये छोटी अली नॉर्मल वाली क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज के बारे में बात कर रहा हूँ. वो तौलिए, जूते, बर्तन, इसके ढक्कन, मोजे, उनकी बातें कर रहे हैं. डिसीजन मेकिंग में नॉर्मल लाइफ में आपको किसी को एक्सेप्ट करना, किसी को अपनी लाइफ में एंटर करना, आपका जो 9 to 5 घर का 12 घंटे का जो आपका नॉर्मल रूटीन होता था अपने माँ बाप के घर में या अपने हॉस्टल लाइफ में, अब आप वो नहीं कर सकते हो. सो होता है कुछ लोगों के में ऐसा होता है कि वो अपनी छोटी छोटी चीज को चेंज करने में भी उनको वक्त चाहिए होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के लिए हार्ड होता है. ठीक है, मोस्टली अब मैं पाकिस्तान की बात करूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करूँगा, गोरे भी कोई भगवान नहीं है, लेकिन यही बात करूँगा कि मतलब लड़कों में भी ये इशू ज्यादा होता है कि भाई वो इमोशनली खुल के बात नहीं कर पाते. मतलब ये हो सकता है वो बोले यार ये मुझे चीज करने में मुश्किल हो रही है, तो अगला आगे से बोल सकते हैं इतनी छोटी सी चीज यार कर सकते हो, तुमको मन क्या होगा, तो मतलब बी अ मैन या स्टफ लाइक दैट. तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई शुरू के इयर्स में आपको एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है, एक दूसरे को वक्त दो, एक दूसरे को टाइम दो.
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 से 4 साल आप एक दूसरे को डिवोर्स मत दो. ये अली का सोल्यूशन, मेरा सोल्यूशन है 3 से 4 साल पहले साथ रह लो. That's true as well. Very true. वो अली का हलाल सोल्यूशन है, That's another आपका alternative. गुड सोल्यूशन है. That's what I would have done if I could. अच्छा, you know, like बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मैंने ना जब मैं बड़ी इंटरेस्टेड हुई थी एक टाइम पे ना रिलेशनशिप्स को समझने के लिए, तो उसमें ये लाइक लिखा हुआ है कि अराउंड 6 to 7 years आपकी वो जो पीरियड है उसके बाद आपकी दफा कंप्लेसेंट भी हो जाते हो. दैट्स व्हेन लाइक यू नो पीपल गेट अनइंटरेस्टेड या जो भी. लेकिन ये बहुत एक कोर्स टाइम है एक दूसरे को वक्त देना. आई थिंक इन द फर्स्ट ईयर 2 years यू रियली हैव टू स्टिक इट आउट. और आई थिंक इसके लिए ना आपकी जो वैल्यूज हैं वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आप खुद कौन हो और आप लाइक आप क्या चाहते हो, राइट? अगर आपको खुद ये नहीं पता और आप सिर्फ शादी इसलिए की है कि जी आपको डायमंड की रिंग मिलनी है या ये मिलना है या वो मिलना है, वो तो फिर आपको कोई भी लाके दे सकता है, राइट? लेकिन वो जो एक इमोशनल बॉन्ड है वो आपको किसके साथ मिलना है, राइट? Yeah, I think requirement number 3 जो हम जिसकी बात हम उसमें कर रहे थे कि like before you get married you have to know yourself so you can tell the other person who you are. अगर आपको खुद नहीं पता, how are you going to tell the other person? And I think we both discovered that when we moved away from our family. Like मुझे तो 8 साल 9 साल हो गए थे अकेले, but अली ने भी थोड़ा सा टाइम अकेले like spend किया था, and that's I think that's what you were saying, right? You had more growth in that time. So हाँ, मलेशिया जब मैं मास्टर्स के लिए गया था तो 2 साल में वहाँ रहा. It was a tough time for me क्योंकि मैं पहली दफा अपने माँ बाप के घर से बाहर निकला था. मतलब पढ़ाई भी करो, काम पे भी जाओ, नौकरी करो, घर आओ, वापस आओ, खाना पकाओ, खाना खाओ, सफाई करो. मेरा दोस्त सलमान उसने बड़ा सपोर्ट किया मुझे मलेशिया में. मैं वो ना होता तो फिर मैं पता नहीं क्या होना था. सो सीरियसली तो लेकिन सईद भी था, सईद शाह. So shout out Salman and Said Shah. और अगर वो सुन रहे हैं तो मेक श्योर आप और भी शेयर करें इसको. so like मतलब हाँ वो टाइम था खुद को समझने के लिए. that helped me. Yeah. Exactly. Yeah. I completely agree. I think alone time बहुत important होता है क्योंकि जब आप फैमिली के घर में रह रहे होते तो रूल्स रेगुलेशंस या जो भी आप कर रहे होते हो इकट्ठे कर रहे होते तो कभी आपको वो अपना अकेला का टाइम नहीं मिलता जब आप खुद अपने लिए कुछ करो या खाना बनाओ फॉर एग्जांपल, ऐसी चीज़ें. तो फॉर मी टू जब मैं भी अकेले जाके हॉस्टल में रही थी तभी मुझे थोड़ा यू नो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज केम अपॉन मी एंड देन आई न्यू के मुझे भी मैं अपना कमरा जैसे गंदा ही रखती थी. फिर आई रियलाइज नहीं, अम्मी ने सिखाया घर साफ रखो, नानी ने सिखाया, तो फिर मैं अपना हॉस्टल भी साफ रखना शुरू किया. इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस, राइट? तो स्मॉल चीजें लाइक दैट. बट इफ माय पेरेंट्स वर देयर विद मी आई डोंट थिंक आई वुड हैव लर्नड सो मच बिकॉज I would have just gone to them for advice. I would have been like, अच्छा ये क्या करना है अभी. पर जब आप अकेले रह रहे हो आप खुद आपका थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत मिलता है. और फिर ऑफ कोर्स पार्टनर के साथ यू हैव टू लिव, तो you'll be more open to it because they've also lived alone, they've learned, they've grown. So for sure ये बात अच्छी है कि अकेले रहो थोड़ा, अगर चांस है, अपॉर्चुनिटी है, go live on your own, figure it out, और फिर allow someone to enter your life and be a partner with you. For sure. Wow. तो अच्छा आई थिंक इसके साथ एक ये भी तो है ना कि अगर आप खुद अपने घर में लेट्स से आप लड़के चला रहे हो ना, चलाऊ काम बस कर रहे हो कि बस चल रहा है कि सफाइयाँ बस हो रही हैं, आप हॉस्टल में हो या जहाँ पर भी हो, राइट? और अब आप एकदम से लेट्स से शादी करते हो तो क्योंकि हमारे जेंडर नॉर्म्स भी इतने ज्यादा स्ट्रांग है, राइट, कि लड़कियों का काम है सफाई करना फॉर एग्जाम्पल या घर को मेंटेन करना. तो क्या लाइक वेयर डू यू थिंक दैट कम्स इन? लाइक लड़कों के होते यार मैंने शादी क्यों की, बीवी किस लिए है? इधर पे नौकरानी रख लो ना यार. थैंक यू. एक बार फिर से जरा ऊंची बोलेंगे आप. मैंने कहा अगर तुम्हें घर में काम चौथा पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट आगे सुन लो बच्चों. चौथा पब्लिक अच्छा जी बोले सॉरी. नहीं वही बात होगी यार, अगर तुम्हें जीवन साथी चाहिए तो फिर शादी करो ना. अगर तुम्हें कोई चाहिए अपनी लाइफ में, मतलब जिसके तुम अपने साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सको, अपनी लाइफ शेयर कर सको. घर के काम कराने तो पाकिस्तान में बहुत सस्ती मिलती है काम वाली यार, वो घर में. यहाँ हाँ कनाडा में बहुत महंगा है. कनाडा उफ, मैं जब मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, I was thinking कि मैं यहाँ पे You would have earned better for sure. You would have earned good amount if you were doing housekeeping and stuff like that. बहुत expensive. Respect and I guess equality for sure for everybody. या मतलब नहीं इस तरह. लेकिन I get that. I get because
मैं अली को उसने बताया था, लाइक वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग है, कि मुझे कभी कभी गिल्टी फील होता है जब अली मेरे लिए नाश्ता लाता है या अली कोई बर्तन धोता है, तो आई फील गिल्टी। आई वाज लाइक, ओह दैट्स माय जॉब। And then he tells me, it's like, no, it's not your job. It's my job description में नहीं था तुम्हारा, like if you want to do it, great. If you don't, that's okay. So मुझे खाना कोई मुझे शौक नहीं खाना बनाने का. I would rather clean and organize. So and he likes to cook. So you know what? It works out. हाँ, it works out. So एक सवाल मुझे अभी से आया, मेरे थोड़े से बैचलर दोस्त हैं, उनमें से यही सोचा, उनका कोई प्लान नहीं शादी करने का, और मैं उनसे ये सुनती हूँ, मैं आप लोगों से भी सुनना चाहूंगी इस पे आपका क्या कहना है। जब भी उनको वो शादी क्यों नहीं करनी, वो कहते हैं कि हम किसी और की नहीं सुन सकते पूरी जिंदगी, लाइक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपने सुना है कभी किसी से? In my 19 or 20. Why were you saying that? I want to know, ताकि मैं सबको एक public service announcement दे सकूं। We were talking about it yesterday. I was there. मैं सुन रही थी पीछे। हमारा जब relationship start हुआ, अब इस तरह तो नहीं, मतलब अब फिर इसको बताओ, शुरू में मतलब ये मुझे बता रही है कि मैसेज में बात हो रही नहीं, ऐसा नहीं करना, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं यहाँ नहीं, we used to update each other कि because हम दूर हैं, चाहे लड़ाई हो ना हो, हम जिससे अपडेट करें हम कहाँ जा रहे हैं। Exactly. अब मैं घर से किसी भी टाइम निकलूं and all that, अब माँ बाप के घर में तो मतलब जब तक कॉल नहीं आती थी तब तक तो पता नहीं रहता अली किधर है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं इस तरह निकलता था बाहर। फिर जब रिलेशनशिप शुरू हुआ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं फलाना है, मैंने कहा यार बद्दा है, मतलब वो क्या रहा मेरे साथ। आजाद पंछी था। मैं तो आजाद उड़ने वाला पंछी, मैं ये मुझे मतलब हद हो गई है। मैं तो कैदी फील कर रहा हूँ। मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, मेरे अब्बू ये कहते मैं कैद हो गया। प्यार में कैद हो गया मैं। प्यार में कैद हो गया। बस फिर मुझे था, मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो फिर मुझे ये बताएं, आपको क्यों उम्र कैद मंजूर हो गई? आप अच्छा लगता है। अच्छा नहीं वो पार्ट बताए ना, व्हाट चेंज्ड, कि कब आपकी सोच बदली कि नहीं, दिस इज नॉट कैद नहीं हूं मैं, दिस इज, ये प्यार है, ये खूबसूरत एक पार्टनरशिप है, कब ये आपकी सोच बदली? ओके, इसको मैं ऐसे अल्फाज में बोलूंगा कि भाई मैं ऑब्वियसली घर से बाहर निकलता हूँ तो आपकी फिक्र करने वाला पीछे, एटलीस्ट आपको इतना है कि आपके पीछे फिक्र करने वाला कोई है। माँ बाप डेफिनेटली होते हैं, माँ बाप के अलावा आपके बहन भाई, और या जिंदगी में कोई स्पेशल जिसके साथ आपको जिंदगी गुजारनी है। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, पहुंचूंगा, अब घंटा ड्राइव करके अगर मैं कहीं जा रहा हूँ काम पे, तो पहुंच के मैं इसको अपडेट करूंगा कि हाँ बेगम मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, ताकि इसको तसल्ली और इसका दिन जो है वो बिल्कुल सुकून में गुजरे। फॉर दैट रीजन, या आपको एक दूसरे को अपडेट, अब ये कहीं बाहर निकलेगी ऑफ कोर्स ये मुझे अपडेट करती है कि भाई Do you remember why the realization hit you? आपको याद है? मुझे I don't remember. आप बताओ शफक, आपको? मुझे ऐसे याद पड़ रहा है कि ये हुआ था जब नी टोल्ड मी मुझे पसंद नहीं, मैं कहा ठीक है आपसे अपडेट नहीं करेंगे। फिर जी एक दिन मेरी अपडेट नहीं आई, मेरा उस दिन फोन डेड हो गया था, मैं टोरंटो के लाइक स्नो में फंस गई थी। फिर अली को एहसास हुआ कि यार तो दिस कैन बी इट, टेबल्स हैव टर्न्ड, आई नीड टू नो वेयर शी इज। यार ये देखा, ये कोई बिग इवेंट होता है तो फिर एहसास हो जाता है। एहसास हो जाता है, लेकिन वही अब जो ये जो अर्ली अभी की बात कर रहे हैं कि मैं कैद फील नहीं कर सकता, वो आएगा भी, बच्चों वाली बात। 10 साल पुरानी वाली बातें, इनका टाइम आएगा, खुद ही अंडरस्टैंड करेंगे। या होती है, राइट, टाइम लगता है। if you feel imprisoned you shouldn't be in the relationship. It's a red flag. Just keep searching for the right one, जिसके साथ आप प्रिजन फील नहीं करते। ये भी है। अच्छा, मैंने ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात अभी शफक ने जब बोली थी ना कि जब अली नाश्ता लेकर आता है, कुछ करता है, तो शी फील्स लाइक अंदर से गिल्ट फील होता है, राइट? इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि हमें ये सिखाया गया है कि मियाँ की इज्जत करनी है, राइट, और बीवी से मोहब्बत करनी है या जो भी है, लेकिन इज्जत तो ये मियाँ की इज्जत देन है क्या, राइट? या लाइक वो हाउ डू यू रिस्पेक्ट वन अनदर? इज्जत का जो कॉन्सेप्ट हमारा है कि मियाँ की इज्जत करो या बीवी की इज्जत करो, व्हाट इज दैट? हमारे लिए I think it works differently for everyone, but हमारे लिए respect was quite important. I think we made Sorry, what did you say? I didn't hear that. I said कि हमारे लिए everybody has a different opinion about like respect होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. I've seen couples जो एक दूसरे को very 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 comfortable cussing each other out. लेकिन हमें एक दूसरे के लिए I think we made it clear from day one कि respect is very important for each other. So day one से actually we've never cussed at each other. Never. जबकि हम दोस्त हैं, मैंने गालियाँ निकाली हैं अच्छी, like you know, रंग बिरंगी, like you know, for other people, but never towards him.
So I think, and that's just one aspect of respect. I think that's important. Like obviously both sides, not just One because side. and I'm not respecting him because of mard hai or because he's born anatomically a man, but because he's my partner and he, like, there's reciprocity there because he respects. Yeah. No, मैंने खुद अपनी बड़ों की relationships देखी हैं जो पहले अच्छी थी but with time it didn't work out, so it's hard for them to leave the relationship. Of course divorce of course society में acceptable नहीं है और दोनों की parents की side से भी. तो मैंने खुद देखा है with kids, उनके अपने बच्चों के सामने वो एक दूसरे को बुरी बुरी बातें कह रहे हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम या जो भी है, गालियां नहीं लोगों के सामने दे रहे but बुरी बातें, तो उसमें इतना बैड टेस्ट क्रिएट हो जाता है. जैसे दोस्ती में भी अगर आप किसी को लड़ाई हो जाए आपकी या कोई आप गंदी बातें कह दो किसी को गलती से या जो भी, वो बैड टेस्ट क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद वो दोस्ती कैसे चल सकती है, राइट? You brought up a really good point. Sorry if I'm cutting. No, I was just saying कि वो दोस्ती नहीं, बैड टेस्ट क्रिएट हो गया, तो you want to keep that level of respect. आप वो एक जैसे आप अपने अम्मी अब्बू को कभी कोई गाली नहीं दोगे, उतनी ही रिस्पेक्ट आप अपने पार्टनर को दो, राइट? और इतनी रिस्पेक्ट आप अपने आप को देते हो. अपने आप को कौन गालियां देता है कभी कभार मजाक से, बट उतनी रिस्पेक्ट आप अपने पार्टनर को दो. या सॉरी शफीक, गो अहेड. No, it's okay. I think आपने मुझे बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया जो मैंने अली को शुरू में बताया था कि you know, when you look at other couples you realize, oh, this is something I don't want in my relationship. There's one thing I was very adamant on कि I've always seen a lot of my friends, a lot of mostly Pakistani friends of mine कि अपनी बीवियों को jokes में insult करते थे, right? Very like rude, like very very degrading jokes. And सबके सामने सुना के, and then you know she's meanwhile she's coming in with like chai for your friends and she hasn't eaten all day and you're making jokes about that. And then people tell me, oh, you know what, like just come on, it's fine, like, it's just a joke. I get that and I have a sense of humor. Like, look at the girl who like obviously she looked so hurt. I know I've seen this incident. Uske aankhon mein itna dard tha and I felt so terrible for the woman because I was like, I wanted to carry her out of the house. Like I was like, I wish I could ask you to leave with me. You know, she looked so hurt. Why would you make a joke about आप बंद कमरे में एक दूसरे के साथ jokes करते हो? That's fine. Maybe that's something that you guys have. एक trust है एक दूसरे के साथ. Don't do it in front of other people. It creates, you're asking the other people, here, this is how you can treat my wife. Exactly. आप normal jokes कर सकते हो, लेकिन ऐसे sensitive बात पे जोक नहीं करो जो तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारी बेगम का वो सेंसिटिव पॉइंट है, वो उसको हर्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली तुम अपनी बेगम को पर्सनली जानते हो, दूसरा नहीं जानता. तो ये वो वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट की बात है ना. दूसरों के सामने तुम जैसे ट्रीट करोगे अपनी बेगम को, ऑब्वियसली कल को भी वैसा मजाक करेगा या करेगी. बिल्कुल. एंड आई थिंक हमें ये लगता है कि शायद सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन आप किसी को रिडिक्यूल जब कर रहे हो तो वो that's not funny, that's not a joke, right? Jokes are very difficult to be funny. Actually is quite hard. It's not that easy, especially आजकल. It's because you have to change. कनाडा में बहुत मुश्किल है मजाक करना. I think it's just because he's becoming more aware. यहाँ पे जोक करना बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में बहुत आसान है. नहीं, I 100% सारे जोक अंदर अभी मैंने रखे हुए हैं, मैं पाकिस्तान जाके मैं निकालूंगा, क्योंकि वहां पे रेसिज्म या वहां पे इस तरह की स्टफ को इतना माइंड नहीं करते यार. वहां पे अगर कुछ बोल दो तो अगला डूड कह वो सीधा हो जाता है. नहीं, फॉर श्योर मैं अग्री करती हूँ. यहाँ किसी को जुगते आप नहीं लगा सकते खुल के, यू नो. आप लाइक एक थोड़ा वो रखते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी अपने जोक्स को ट्रांसलेट करना इंग्लिश में. क्योंकि आप सोचते हो आपको कुछ जोक आता है, उर्दू में आता है, और उर्दू में वो इतना क्लासी जोक होता है, आपका दिल चाहता है बोल दो, मगर जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो उसकी सारी ट्रांसलेशन निकल जाती है. तो बहुत सारे जोक्स हैं जो उर्दू में होते हैं, वो 100% एग्री. बट या सेंसिटिव जोक्स ऑफ कोर्स किसी की लुक्स पे, किसी के बिहेवियर पे, स्पेशली अगर आपके पार्टनर हैं तो आप किसी के सामने उनको बुरा थोड़ी दिखाना चाहोगे, तो उसमें आई थिंक हमारी सोसाइटी थोड़ी लैक करती है. अंकल्स स्पेशली मैंने देखा है वो अपनी बीवियों के बारे में. तो ये बड़ा आई थिंक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमने जब बात इज्जत की जो हम कर रहे हैं, दिस कांसेप्ट ऑफ नाउ रिस्पेक्ट इन अ मैरिज, एक तो है कि आप किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे हो, आप उसको रिडिक्यूल नहीं कर रहे हो, पब्लिकली ह्यूमिलिएट नहीं कर रहे हो.
और फिर उसके साथ आई थिंक दूसरा ये भी है कि लेट्स से आप व्हाट इफ लाइक जिस तरह we've seen this many times टीवी पे दिखाते हैं इवन फैमिलीज कि लड़के की फैमिली या लड़की की फैमिली भी इवन आपके पार्टनर को रिडिक्यूल कर रही है डिपेंडिंग ऑन स्पेशली अगर लव मैरिज की सिचुएशन है जिसमें एक साइड नहीं एग्रीड है तो लड़कियां क्योंकि हमारे वो भी ना कि माँ बाप को कुछ नहीं कहना तो दे विल बी कंप्लेसेंट कि लड़की को जो मर्जी बोल दें आपने नहीं बोलना लाइक how what is that does that dynamic change to कि आपने लड़की की इज्जत कैसे करवानी है I've always heard that कि लड़की की जो बीवी की इज्जत होती है वो मर्द ही वो शौहर ही करवाता है I don't get the question. Yeah, I think I read that. Sorry. So for example, like अगर आपके जो दूसरे हैं, like let's say आपके अपने घर वाले, like लड़के की फैमिली, and I'm just gonna give an example, like just for hypothetically, कि अगर अली की फैमिली ने या किसी ने शफक को कुछ ऐसा बोल दिया, like degrade किया है, something like that. अब शफक hurt है, so like कई दफा जो आदमी होते हैं, like they're saying कि they're just gonna be complacent क्योंकि घर वाले हैं, अम्मी अबू ने बोला या बड़ों ने बोला कुछ नहीं होता रहने दो. मगर it can become a habit, right? Oftentimes, or even like हमारी many times like I've seen like people be afraid of like नंदे ना हो, right? कई दफा लोग कहते हैं ना कि यार ऐसा लड़का ढूंढो जिसकी ना माँ हो और ना बहन हो. वो तो हमारी वो कहानी घर घर की कभी सास भी कभी बहू थी जो नंदे होती है ना वो हमारी स्टीरियोटाइपिकल देख कहते हैं कि वैसी नंद. ये माइंडसेट बनता कहाँ से है? ये माइंडसेट बनता है हमारे ड्रामों से. बिल्कुल. ये मेन स्ट्रीम मीडिया से ये चीज बनती है. बिल्कुल. पाकिस्तान के ड्रामे मैंने तो जब से थिएटर की दुनिया में घुसा था मैं मतलब इतना कोई क्लासी थिएटर नहीं करता था लेकिन यूनिवर्सिटी में बैठ गया था मैं. लेकिन उसके बाद से मैंने मतलब ड्रामे और ये बॉलीवुड मूवीज मतलब देखना छोड़ दी थी. तो मतलब ये मतलब स्टूपिड स्टफ. हम क्या दिखा रहे हैं, हम दिखा क्या रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. फिर जब कोई टर्की का कोई ड्रामा आके फेमस हो जाए तो फिर आपके इंडस्ट्री वाले निकलते हैं कि भाई हमारे ड्रामे देखो. तो तुम कंटेंट लाओ तो तुम ड्रामे देखेंगे. मतलब ये एक और पॉडकास्ट है जी, ये एक और टॉपिक है. मतलब वही दिखाएंगे कि वो लड़की आई है स्ट्रगल किया है एंड में लड़के ने आके रेस्क्यू कर लिया. हाँ रेस्क्यू भी कर लिया माफी मांग ली तो जी अच्छा. एग्जैक्टली दिस कॉन्सेप्ट ऑफ माफी जो सफर वो जो गुजारा है उसमें मतलब वो जो 30 एपिसोड बनाई है मतलब वो 25 एपिसोड तक तो रोती रही और मार खाती रही है. तो वो असर करता है ना आपके घर में बैठ के जो फिर औरतें देखती हैं या बच्चे जो देखते हैं. बच्चे माँ बाप के साथ बैठ के जो ड्रामे देख रहे होते हैं माँ के साथ बिल्कुल. तो फिर वो डेवलप ऐसे होता है अच्छा भाई लड़की आएगी तो लड़की ऐसी ही होती है. बड़ी सबमिसिव होनी चाहिए, चुप होनी चाहिए, राइट. और जो लड़कियां थोड़ी सी लाइक और जो विलन लड़की है वो प्रोफेशनल है, वो जीन्स पहनती है, पैंट्स पहनती है, राइट. और जो अच्छी बीवी है वो बेचारी सलवार कमीज पहन के मार खाती रहती है और गालियां सुनती रहती है, राइट. और आई डोंट थिंक माँ बाप लड़की के या माँ बाप लड़के के कभी भी लड़के या लड़की को बहू या क्या कहते हैं उसको दामाद को ऐसे उठा के डांट देगा या कोई बात हो जाएगी. एटलीस्ट कोई बड़ी बात हो गई तो वो रिस्पेक्टिव वे में समझा सकते हैं. ठीक है कि बेटा ऐसा नहीं, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं है, ऐसा है. क्योंकि अच्छा फैमिली के भी नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं. हर फैमिली का एक अपना एक तो ऑब्वियसली लड़की के लिए मुश्किल होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जब वो फैमिली में आती है क्योंकि वो अपना खानदान के नॉर्म्स छोड़ के आपके खानदान के नॉर्म्स को एक्सेप्ट करने आती है. तो लड़की के लिए हार्ड होता है वो करना, एक्सेप्ट करना. ठीक है मेरी भी सिस्टर्स हैं तो मुझे इस चीज का अंदाजा है, मैं देखा हुआ है. तो नंदे मेरी 5 है बाय द वे. या माशाल्लाह यार उनको भी लाओ पॉडकास्ट. like great relationship with all of them. So यही बात है कभी-कभार आपको एक नंद भी बहुत भारी पड़ती है, कभी-कभार 5 पे पता भी नहीं चलता. वाओ. तो मतलब ये गाइस ये बड़ी स्टेटमेंट थी शफक. तो वही फिर लड़के की फैमिली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस लड़की के आने पे उसको इतना इजी इन कराओ फैमिली में कि उसको अपना घर लगे. अपना इजी हो उसके लिए. पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्टनर की भी वही क्योंकि इसके लिए और मेरे माँ बाप के बीच में मैं ब्रिज हूँ. हाँ ठीक है अगर मैंने उस ब्रिज को सही से होल्ड नहीं किया तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगी. ठीक है तो फिर ये डूबे ये गिरेगी, पुल टूटेगा, मैं भी गिरूंगा, घर टूटेगा. सिंपल इज दैट. सो मेरी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर इसकी अपनी फैमिली की तरफ. ये ब्रिज है मेरे लिए. अली ड्रामे कब लिखने शुरू कर रहे हो?
मैंने कहा ना मैं बातें अच्छी करता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ। तो आप भी फिर पॉडकास्ट शुरू कर लें। आप इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं, दोनों आप दोनों का होना चाहिए। कपल्स थेरेपी नाम लिख दो, मैं तो कहती हूँ। अच्छा, this is very interesting. तो I think in the end आपके ऊपर होता है, लड़का लड़की हाँ. के ऊपर होता है कि आप रिश्ते को लेके आपने कैसे चलना है। आपको मजाक लग रहा है तो आप शादी मत करो भाई, लेकिन आपको सीरियसली अगर एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगता है कि हम जिंदगी के साथ गुजार सकते हैं, आपको लगता है कि हम माँ बाप हमारे एक पेज पे आ सकते हैं, या मेरे माँ बाप मैं इसके लिए जिंदगी आसान बना सकते हैं अपने घर के नॉर्म्स को समझने के लिए, तो परफेक्ट है। लेकिन अगर स्टार्ट में आपने उसको एक स्टॉप साइन दिखा दिया या वाइट दीवार सामने खड़ी कर दी है, तो फिर आप एक्सपेक्ट मत नहीं करो कि भाई आपका पूरा खानदान पूरी जिंदगी खुशी खुशी गुजारेगी। How hard do you want to make your life? अगर आपको आसान रखनी है, आप make, take the initiative, make the effort. And it's hard, of course. आसान नहीं होता अली के लिए बफर बनना या मेरे लिए बफर बनना, मुश्किल है। very, मतलब हम वो नहीं दिखाएंगे, क्या कहते हैं उसको, खूबसूरत सा कोई वो adaptation process was very hard, 100%. मुश्किल होता है, अडैप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन आपको आगे की जिंदगी आपको अगर आसान बनानी है, so you have to go through that. वही बात होगी शुरू के 3 से 4 साल। जी, ये वैसे मेरा आखिरी सवाल होने वाला था एपिसोड का कि what advice do you have for young couples और what would you want to say for young lovers, पर ये आपने बहुत खूबसूरत बातें कर दी, मगर एक दो और अगर आप बोल दें, एडवाइस दें जो शादी करना चाह रहे हैं, जिनके साथ जिनको वो पसंद है, जो शादी में आ चुके हैं, शायद थोड़ा उनके मसले चल रहे हैं या कुछ, so overall अगर कोई एडवाइस आपके पास हो, so please for the young couples out there, young lovers out there on Valentine's Day. Patience, understanding and space time. अंडरस्टैंडिंग में ये बहुत कॉमन चीज, सबको पता है, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड ऑल दैट, ये हर दूसरा बंदा आपको बताएगा, लॉयल्टी एंड ऑल दैट, ये ऑब्वियस है रिश्ते में, ये ऑब्वियस चीज है। स्पेस टाइम बहुत जरूरी है खुद के साथ, पहले दिन खुद के साथ टाइम गुजारो, खुद को अगर तुम अपने आप को खुश कर सकते हो। मुझे ग्राउंड जाके खेलना, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, मुझे उल्टपटांग हरकतें करके, वो कदीम बोला मैं उल्टपटांग हरकतें करके अपलोड कर लेता हूँ, गो फॉलो कदीम बोला। उसपे मुझे थैंक यू सो मच, उसपे मुझे वो मेरी खुशी है, वो मेरा अपना टाइम। एंड मुझे बाहर ग्राउंड में निकाल दो या मुझे कैमरा के सामने बिठा दो, आई विल बी वेरी अपसेट। इसका क्या है, उसकी बुक रीडिंग है, रात को मैं उसको ये 1-2 घंटा ये बैठती है, मैं उस पर अपना जाके नीचे एडिटिंग कर रहा हूँ, ये 1 या 2 घंटा अपना बुक पढ़ती है। मैं अब जो वो काम करूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है, वो करी जिससे उसको खुशी मिलती है, उसके बाद हम बैठते हैं, फिर बुक में बताती है हाँ ये स्टोरी एंड ऑल दैट, फिर मैं बताता हूँ हाँ मेरे एडिटिंग में ये स्टफ चल रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि लाइक लोगों को कई दफा लगता है कि अगर मुझे हाइकिंग करने का शौक है तो मेरे पार्टनर भी मेरे साथ माउंटेन्स में रहे 24 घंटे। कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें उसके दोस्तों के साथ दोस्त बनने की जरूरत है, या तो मेरे दोस्तों के साथ दोस्त बनने, ये कोई ठप्पा नहीं है, कोई कुछ वर्क लाइक दैट। फिर तो आप वही बात होगी, फिर वापस सैक्रिफाइस हो रहा है, बिल्कुल गलत बातों पे कॉम्प्रोमाइज, जरा सा कुछ हो गया, उधर से भी दोस्ती टूटेगी, इधर से भी दोस्ती टूटेगी, एंड दोनों अकेले रह जाओगे, बुक तो फिर। And we are polar opposites. Like Ali has specific best friends जिसके साथ he shares everything. I have never seen friendship like that. मुझे समझ ही नहीं आती ऐसी friendship के साथ। Is it Salman and Said? Salman and Amir Ali. Shout out Amir Ali. Yeah, I've never, and like mashallah इनकी इनकी दोस्ती इतनी गहरी है, it's been, अगर हमें since we've been together for 7, like when I was first met him at 7, I think that's around the same time you guys became friends. No, उससे पहले। Oh wow. हम मतलब होश में जब पहली शुरू की बचपन की क्लास में आए थे तो हम साथ। And I have never seen friendship like that. मुझे ऐसी friendship नहीं समझ आती, because I feel like something must be wrong with them or me. क्योंकि हम क्या है, मुझे और दोस्त क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हमारे बीच में क्या है कि हम ना एक दूसरे को ना अपनी औकात याद दिलाते हैं। तू कहाँ से निकला है और मैं कहाँ से निकला। और ये मुझसे नहीं होता। I can never humiliate my friend. No, देखो। He doesn't call that humiliation. It's not humiliation. देखो, दूसरा बंदा आपको कभी भी आपके मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताएगा कि तेरे साथ मसला क्या है। ठीक है, वो तुम्हारे मुंह पे तारीफें करके बहुत अच्छा बताएगा। मैं तालिया से मिला, मैं तालिया की तारीफें करूंगा, महर की तारीफें करूंगा, पीछे बोलूंगा यार अच्छा। तो
कोई बात नहीं। वो चीज आपका बेस्ट फ्रेंड आपको मुझे बोलता है कि भाई तेरे साथ ये मसला, मैं कोई काम करता हूँ या मैं कोई वीडियो एडिट करता हूँ तो मैं सबसे पहले अपने 2 दोस्तों को भेजता हूँ कि यार मैंने ये काम किया है, अपलोड करूँ कि ना करूँ, क्या तुम बताओ। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो मुंह पे आके हम बात करते हैं कि भाई ये मसला है तेरे साथ ये मसला है, सो तू नहीं, वो दोस्त होना बड़ा जरूरी है जिंदगी में। हमें लगता रियलिटी है कि चेक हमारे वाला दोस्त। हाँ, हमें सबको लगता है हमें वो दोस्त चाहिए जिंदगी में जो हर वक्त ना हमारी ईगो को बूस्ट करते रहे, लेकिन वो दोस्त आपका दोस्त है जो आप नोइंग कि वो शायद रिलेशनशिप को रिस्क कर रहा है, लेकिन वो आपको आईना दिखा सकता है कि बेटा जरा देख लो कर क्या रहे हो। Shafaq, when you say it's hard for you to believe someone is humiliated, do you have like you have sisters, right? Are Yeah, they I your have one reality check sisters? Are they reality Oh, check sisters? but sisters are different. नहीं And ना, तो आपको वहां से मिल जाती है अपनी humiliation. that's true. You're like मैं That's बाहर true. My दोस्तों से sister क्यों is आप बेइज्जती my कराऊं? probably one of my only best Actually- friends. Yeah, Oh, That's beautiful. That's good. That's good. अच्छा, वो लेकिन वो now- ना शीशे पे ना वो स्प्रे मार के साफ करके उसको दिखाती है। Listen, वो मुझे नहीं कहना तो कौन देगा यार, मैं कहाँ जाऊँ फिर? Beautiful. ये That's चीज beautiful. अब देखो there's a difference। अब ये चीज मैं इसके साथ अभी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं शीशा दिखा रहा हूँ लेकिन साफ करके नहीं दिखा रहा। मुझे थोड़े से Sugar coated. एग्जैक्ट, हाँ that's the right word। मुझे वो करके दिखाता हूँ लेकिन वो करके दिखाना है। सो अब दोस्तों के बीच में वो वाली चीज है। Yeah. That's beautiful. अच्छा, तो क्योंकि Valentine's Day है, how do you think how do you guys express care and love in a relationship? So we do that every day। और वो एडवाइस में भी आ जाएगा कैसे दिखाना चाहिए। हाँ, like how should Other. क्या है, डायमंड रिंग्स आ रही हैं रोज या No, फिर कैरिबियन की फ्लाइट की छोटी- टिकट्स हैं? छोटी We should चीजें। tell them about the love language test that we did to understand each other. That's No, it was cool. no, that was Talia, we should do the Ah. love language test. We have to do after. the love language test. No. It was very cool. So yeah, it was cool। So उसमें अब क्या कहते हैं, केयर एक दूसरे की कैसे दिखाना। अब फॉर एग्जांपल जो नाश्ते वाले आने वाली बात हो रही है, नाश्ते में जब ये टाइम होता है इसके पास, मेरे पास नहीं, तो मेरा वेट करती है नाश्ते के लिए। मतलब टेबल पे मुझे अकेले बैठने नहीं देती, मेरे साथ बैठती है ब्रेक टाइम पे। ये सुबह बैठ के 8 बजे अगर मीटिंग कर रही होगी, उसको इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मीटिंग से नहीं हिल सकते क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, तो मीटिंग नहीं कर सकती, तो फिर मैं नीचे जाके, मैं फारिग हूँ, मुझे पता है मेरा काम मैंने 10 बजे स्टार्ट करना है, 11 बजे स्टार्ट करना है, मैं जाऊँगा नीचे जाके इसके लिए पोरिज बना के उठ के यहाँ चाय के साथ यहाँ रख दूंगा, तो वो मीटिंग के साथ साथ अपना नाश्ता कर लेंगी। सो छोटी छोटी चीजें, अब लव शो करने के लिए आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, छोटी चीजें मायने रखती हैं। छोटी, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का मतलब नजर रखो कि हाँ भाई यार ये चीज है। फॉर एग्जांपल मैं अब इस्लामाबाद में अपने दोस्तों के साथ, जुगतबाजों के साथ उठा बैठा हूँ, ठीक है, टेकिंग अच्छी खासी करता हूँ, लेकिन मुझे इसका पता है कि यार ये चीज इसको बुरी लगती है, ऑल दैट मुझे बहुत मौके देती है, मैं केयर करता हूँ, मैं इसको जुगत नहीं मानता। तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, बट अगर मेरे नजरिए से देखा जाए, जो मेरे अंदर जो रुकावट आती है, जो मेरे लिए टफ है, That's true. वो एक किस्म का केयर है ना, एक दूसरे क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसको मार दिया, वो पॉइंट पे हर्ट हो जाएगी। You are being sensitive towards the feelings and that is so important कि again आप गलती से कुछ बोल दो, और स्पेशली अगर आपको पता है वो आपके पार्टनर का सेंसिटिव स्पॉट है, why do you want it? तंग करने का भी लोगों को बहुत शौक है, तो आप अपनी बीवी को क्यों तंग करो? तो परफेक्ट बात ये। और शफक, आप कैसे ट्रीट करती हो अली को फिर? मैं इसलिए लव लैंग्वेज बोल रही थी बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू टेल हिम कि मेरी लव लैंग्वेज लाइक एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। मुझे जिस तरह से माय चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड माय लाइफ हैज बीन कि इफ यू लव समवन यू शो देम बाय गेटिंग देम स्टफ। So I've always bought stuff for Ali, and then I think I've realized over the years that that's not how he feels loved. So even if you have a way of showing love and if they don't feel it, तो फायदा नहीं हुआ तुम्हारा, you know. So how he likes it is being told, being hugged, is trying to say, you know, like just the small things, छोटी खुशियाँ, छोटी खुशियाँ। कोई बात नहीं, तेरे से दरिया बनता है तो। हाय ये तो भाई बता दें आपके कब आ रही है, लाइक हम दरिया बनता है। सरी में नेक्स्ट कोई भी थिएटर हो हमें बताओ, हम महीना पहले पहुंच जाएंगे, इसको ऑडिशन करा लेना बेशक, लेकिन कोविड ये तो ऑडिशन छोड़ो, डायरेक्ट मैं कर रही हूँ, इनको हम घर की बात है यार हमारे पाकिस्तानी है। ताले अच्छा, लिखो, जल्दी से बुलाओ इनको यार, बस कर रहे हैं अब तो हम प्ले, ये कोविड खत्म हो मनूस, हम तो यार ऑनलाइन ही कुछ शुरू करते हैं, बस लिबर्टी चलो 2.0, ठीक है, बस सही है। अब लेट्स, अच्छा अब एंड करने से पहले हमें गेम खेलते हैं
हैं क्विकली, ठीक है ना? हम कपल गेम खेलते हैं, हम आप दोनों को सवाल पूछेंगे और आप लोगों ने बस जल्दी जल्दी जवाब देना और एक दूसरे से कंसल्ट नहीं करना है, जो जबान पे आता है बस बोलना है, ठीक है ना? कोई एक दूसरे की तरफ नहीं देखना है, यहाँ पे कंसल्टेशन बहुत हो रही है। अगर कुछ और गलत हो जाए मैं conflict करें तो अगर कुछ गलत हो जाए मैं एडिट कर दूंगी। और आंसर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट तो फिर ये पॉडकास्ट एंड, ठीक है? आप लोग जाके अपना वैलेंटाइंस मनाइएगा, हैप्पी वैलेंटाइंस। Happy Valentine's Day. ठीक है? चलो इजी सवाल से पूछते हैं। Where did you go on your first date? You wanna tell? No. You don't wanna tell? No, you wanna tell. You can also say skip question. Skip question. Question. Skip हो गया, ठीक है? अगर वो बता दिया ना तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे. हाँ. अच्छा ठीक है. Who is more romantic? She. Oh, okay. Who snores more? Who sings in the shower? Shafaq. Oh, I nice. listen songs in the हाँ, shower. हाँ, sorry. Yeah. What I do you listen sing in songs the with my- shower? What do you Huh? sing in the shower? नहीं, अगर she sings songs, what do you sing? He doesn't sing. Oh. He sings वैसे चलते फिरते हैं. Shower की जरूरत नहीं पड़ती. अच्छा, who dances better? Oh no, me. Oh no, no. Oh, नहीं नहीं yeah. मेरे शादी में बड़ा अच्छा डांस किया. हाँ. For evidence, please see our शादी वाली video. अच्छा, who controls the TV remote? You. Good. Ali, You do. Ali कह रहा है शफक. अच्छा चल मैं करता हूँ. Okay. अच्छा, Outgoing. who is more outgoing and who is more introverted? Introverted. अच्छा, Wow. ठीक है, nice. दोनों ने आंसर कर दिया. Very self-aware, ठीक है. Who has the better jokes? मैं do. Ali. अच्छा, who has the better taste in clothes? तेरे लिए भी शॉपिंग करनी है. Conflict. अभी. अच्छा ठीक है. Who usually wins the arguments? I do. शफक गधा. तो इसका तो सॉरी कौन पहले बोलता है? मैं. Yeah. Oh wow, अच्छा interesting. अच्छा ठीक है. Logical जवाब दे के sorry मैं बोलती हूँ. Who is more likely to burn down the house while cooking? Shafaq. Oh wow, I Not like because that. I'm a bad cook, but because I'm just very clumsy. नहीं नहीं वो यहाँ लगे हुए होते हैं ना फायर अलार्म्स है ना? हर वक्त बज रहे होते हैं. हाँ. बजते हैं वो. मैं पहली नहीं, दफा वो बजा नहीं मैं बजते. डर गया. नहीं क्या मैं लेटा हुआ था. मैं क्या बजा घर के. तो पाकिस्तान में तो नहीं है ना. मतलब ये हाँ. दिस इज नॉट नॉर्मल थिंग इन पाकिस्तान. हाँ नहीं. मैं लेटा हूँ टी 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 मैं भाग के नीचे निकला हूँ तो वो जी उधर वो यूं हाँ, क्योंकि यहाँ यहाँ के एग्जॉस्ट फैन इतने फारिग होते हैं. बहुत बंदा ज्यादा. ऐसे कर I'm रहा not होता है. accustomed to South Asian अब cooking. वो किचन का पीछे दरवाजा भी नहीं खोल सकते क्योंकि -16 चल रहा है बाहर. No. मतलब समझ रहे हैं हम आपकी पेन. बड़ी समझ रहे हैं. हम समझ गए बड़े मसले हैं. रोटियां नहीं बन रही हैं यानी कि. अच्छा, Meru, why don't you ask the last question? You asked my all questions. I जो don't आपका have any favorite था. questions. मुझे इतनी अच्छी बात. कौन सा अच्छा सवाल? एक ओह, क्वेश्चन अच्छा, बस पूछना हाँ. है. मेरू को बड़ा अच्छा, मुझे लगता है आप वो कह रही हो. क्वेश्चन ये है. ताले आप ही पूछो. बोले मेरू. अच्छा, मेरू थक क्वेश्चन गई ये है. मेरू थक मुझे गई है. ना भूल गई. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ आई लव यू इन उर्दू. लाइक ठीक है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बट जैसे आप एक वेस्टर्न रिलेशनशिप में यू वुड बी लाइक आई लव यू, पर आप किसी को हग करें मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, थोड़ा वियर्ड लगता है. तो आई लव यू का इक्विवेलेंट क्या है? आप कैसे, हाउ डू यू शो अफेक्शन? उर्दू में हाँ, Like उर्दू में देसी का क्या इक्विवेलेंट होगा? देसी का क्या? What is this? And get married, like, No. isn't that a way of saying I love you? उर्दू में आई लव यू मेरे ख्याल से तारीफ होगा. जो उर्दू में आप तारीफ करते हो ना कि बेगम आप बहुत खूबसूरत लग रही हो या तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी लग रही हैं. आई थिंक सही. मोहब्बत का इजहार मेरे ख्याल से इन लफ्जों से होगा उर्दू में. आई थिंक कोई शेर व शायरी के साथ. हाँ. शेर व शायरी के साथ. और आई थिंक सो. मैं और ये अली को I'm glad कि आप समझ आए, because जब बचपन में मेरा करते थे बोलते थे पिंक में तुम अच्छी नहीं लगती हो. That was one of the first things he said to me. यार it's called transparency. हाँ, sure. Truth. Yeah. While impressing, trying to impress you. I'm not impressed थोड़ी कर रहा था. तू सच बता रहा था. बहुत शुक्रिया. यहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप को हम
ये शॉपिंग देखिए में नहीं अच्छी लग रही थी तो मैं क्या बोलूं, बेगम तू बहुत खूबसूरत लग रही है, क्या हो गया? बेगम नहीं थी उस वक्त, मतलब 12. तो आपने भी शफक बोल देना था, मुझे तू पसंद ही नहीं है। बोला था इसने, अच्छा बोल बोला था याद है दोनों सोच है, को। मैं तेरे घर आऊंगा। चलो, I think we've had a really fun conversation today. हमारा तो Yes. दिमाग खुल गया है, बहुत रोशनी हमें मिली है। हम तो अंधेरे की darkness में घूम रहे थे. So you guys have come and enlightened us today. We've had a lot of fun. बहुत मजा आया है. Yes. We hope that you guys have had a lot of fun. और हम लोग वो टांग अड़ाने वाली आंटियां बनकर आ जाए थे आपको बहुत तंग करने के लिए. But we've had a really fun time. और we wish you all the happiness ahead. खुशियों से भरा जिंदगी आपको मिले, भरी जिंदगी मिले. Thank और we just hope that all your dreams come true. Bilkul. Thank you. Thank you so much for sharing all your wisdom, guys. Go follow them on Instagram. It's Shafak Noorani on Instagram. We'll post it on our Instagram story as well. And it's Kadeem Bola on Instagram as well. And follow us on our Skiya Hai podcast as well. Happy Valentine's. Thank you so much. So you guys, Valentine's. you guys have to do the bye-bye with us, okay? So we're going to do 3, Okay. 2, 1, go. And go ke baad, bye. ठीक है? Bye. ऐसे हाथ करना है, हाँ. Jazz hands, okay? Ready? Jazz. ठीक है. Jazz hands. Oh yeah. Okay, ठीक है. So 3, 2, 1, go. Bye. Bye-bye.